Yesterday also we have discussed that we also call it a residual decision, because this is a decision which we take at the last. When we decided that how much fund we need, then we arrange the sources of finance under financing decision, and afterwards at the end of the year we earned profit, and out of profit we are just going to decide that how much part of the profit we have to divide between or among our shareholders in the form of dividend, because ultimately they are also in the wait or in the hope that how much amount the company is going to pay to them as their return on investment. So it is a very very important and crucial decision. जरूरत से ज्यादा डिविडेंड हम नहीं देंगे, लेकिन हम हर साल ये भी डिनाई नहीं करेंगे that we are not in a position to pay the dividend. In order to maintain your market stability, in order to maintain your repo in the market, in order to have a good market price of your share, you should every year announce dividend. But again, I should repeat one line that it depends upon the circumstances. Are you in a position to pay the dividend every year? That is a point to be considered importantly. So we have certain factors which are affecting our dividend decision. Yesterday we discussed 4 or 5 points, but I am going to repeat that all points. First was amount of earning. If you earn high, you will pay high dividend. If you earn less, you will pay less dividend. So first point he made in your NCERT book, amount of earnings. Earnings in the form of your profit. Right? So direct relation hai. If you earn high, you will pay high dividend. If you earn low, you will pay low dividend. आगे चलते हैं, stability of the earning. कल भी मैंने एग्जाम्पल दी थी. मान लो लास्ट टू लास्ट ईयर आपका जो प्रॉफिट था वो 4.5 लाख था, ठीक है, और लास्ट ईयर में दैट प्रॉफिट कम्स टू 470 और अभी ये प्रॉफिट है 490 या 5 लाख के करीब हो गया, तो थोड़ी सी ही फ्लक्चुएशन है भाई, बट इट इज इंक्रीजिंग और यू कैन से इट इज स्टेबल, मोर और लेस इट इज स्टेबल. And once you are earning the same rate of profit or same amount of profit every year, you are in a position to pay the same amount of dividend as well. ठीक है. If there is a big downfall in your earning, like last to last year you were earning 5 lakh and now your profit just comes down to 1 lakh only. So it is not a right decision on your part that you will be paying same rate of dividend as you were paying last year. ठीक है. So it depends upon the stability of earnings also. Growth opportunities मैंने नहीं, पहले है stability of dividends. Stability of dividend means अगर आपने अपने शेयर होल्डर्स के साथ कमिटमेंट कर रखी है कि हम आपको एक खास परसेंटेज देंगे, मिनिमम इतना % देंगे, तो उस कमिटमेंट को भी फुलफिल करने के लिए आप अपने डिविडेंड डिसीजन को फाइनलाइज करते हो. देखो इसने क्या लिखा, कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर. Increase in dividend is generally made when there is a confidence that their earning potential has gone up and not just the earning of the current year. In other words, dividend per share is not affected by the change in earning if the change in earning is small or seen to be temporary in nature. तो stability of dividend हम लोग वही फॉलो करेंगे जो पिछले सालों में हम पे कर रहे हैं. इस बात को भी माइंड में रखेंगे. बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और आपको लगता है पिछले 3-4 सालों से हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही चल रहा है, डबल प्रॉफिट हो गया है, तो कहीं जाके आप डिविडेंड को इंक्रीज कर दोगे. अदरवाइज यू विल बी फॉलोइंग अ स्टेबलाइज्ड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था. इफ योर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर हाई, you are thinking to grow, you are thinking to invest in your research and development program, you need money to be invested for future. So in that case you will paying less dividend or no dividend, क्योंकि आपके ग्रॉस प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है. बेटर है कि मैं बाहर से पैसा बोरो करने की बजाय मैं अपनी अर्न मनी को ही यूज करूं, क्योंकि जब मैं बाहर से पैसा बोरो करूंगी तो मेरे को उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड इनकर करनी पड़ेगी. इसलिए हम लोग अपने ही कमाए हुए प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में ना डिवाइड करके हम फ्यूचर की ग्रोथ के लिए क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं. हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, लो पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी देयर और इवन नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी देयर. कैश फ्लो पोजीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो पोजीशन? कल भी बात करी थी. इफ यू आर हैविंग अ साउंड और सॉलिड कैश फ्लो पोजीशन, यू कैन पे रेगुलर डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स. देखो इसने क्या लिखा है, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स. अब क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा +1 में हमारा अकाउंट्स के पीरियड में चल रहा है, तो हमें आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में नॉलेज है भाई. कहता यही लिखा है, जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हो तो आपके कैश का आउटफ्लो होता है. अ कंपनी में बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश.
बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी हो लेकिन हो सकता है लिक्विडिटी पोजीशन पुअर हो, ठीक है ना। मींस आपके पास हार्ड कैश नहीं है, इन हैंड नहीं है, बैंक में एफडीज पड़ी हैं, 4 साल के बाद मैच्योर होनी है, साल के बाद मैच्योर होनी है, तो सॉल्वेंसी पोजीशन इज वेरी गुड, बट योर लिक्विडिटी पोजीशन इज पुअर. But if you are having the liquidity position poor, then you can't pay more dividend to your shareholders. Availability of enough cash in the company is necessary for the declaration of dividend. So before you decide to declare dividend, just keep a view of your cash in hand. आप cash in hand को अपने mind में जरूर रखिए before the declaration of dividend. Yes, यहाँ तक हमने कल किया था. Now I am picking the next point as per your book, that is shareholders. ये बड़ा अच्छा point है. Preferences. Preferences here means what shareholders expects from you. आपके शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. मैं यहाँ पे हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ. Are your shareholders bold enough to take the risk? Are they satisfied if you don't pay dividend to them regularly? Or are they expecting a regular return from the company in the form of dividend? अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपकी कंपनी के मैक्सिमम शेयर होल्डर्स पेंशनर्स हैं या ओल्ड एजेड पर्सन हैं, उन्होंने अपनी जॉब से जो भी उन्हें मिला वो सारा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर कंपनी एंड दे वांट दैट ईयर बेसिस के ऊपर उन्हें डिविडेंड मिले. सो आपने पहले ये देखना है आपके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कैसे हैं. इफ दे आर यंग एनफ, ठीक है, उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उनको मंथली सैलरी आ रही है, तो डिविडेंड 1-2 साल नहीं भी पे करोगे, दे विल नेवर बॉदर अबाउट इट. बट इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ योर शेयर होल्डर्स आर द ओल्ड एजेड पर्सन और पेंशनर है, उनका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, पेंशन आती है वो भी हाफ ऑफ द सैलरी आती है, सो फॉर देयर लिवलीहुड दे जस्ट डिपेंड अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बीइंग मेड बाय योर कंपनी. So you can't make them annoyed every time. In that case, you have to pay the regular amount of dividend to them. I think the point should be clear to you. Who will re-explain this point? Shareholders' preferences. मैंने क्या example दी है? Shareholders' preferences. Yes, who will tell? Raise your hand. Sometimes I want certain volunteers from your side. You never come up. Who will answer? Samyak Jain. Unmute करो. Samyak, unmute. Yes, are you hearing me? Samyak unmute करने में fraction of seconds लगते हैं बच्चे. What I explained right now. साक्षी आप करो unmute. साक्षी आप भी कभी अनम्यूट नहीं करते हो. यू नेवर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर. जतिन महाजन आप करो अनम्यूट. जतिन अनम्यूट करो. आर यू देयर और नॉट? तनीषा आप करो अनम्यूट. तनीषा ने सेटिंग ही कुछ ऐसी करी है, अनम्यूट के ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं. वैभव आप करो अनम्यूट. वैभव की भी सेम ऑप्शन है. Yes, no, it means कि no one is getting the things which I am explaining to you. You people are not getting. सोहानी आप करो अनम्यूट. सोहानी अनम्यूट करो. Is there any issue on your side? Yes, ma'am. Okay, Sohani, what I explained? Shareholders' preferences. Shareholder preference means what the shareholders expect from the company, and if the majority of shareholders are youngsters who have their regular income, then if the dividend is skipped sometime, then it is of no problem. But if old age persons are there who are pensioners and don't have regular income, then company should try to give them regular dividend. Very good. The way I told you, in the same manner she explained. It means that she is not reading from the book. So such type of alertness and carefulness I need from your part. मेरे को सुनो, you will definitely get
अगर स्विच ऑन करके लैपटॉप या टीवी या टैबलेट, टीवी आई शुड नॉट से, योर फोन, और आप इधर उधर घूम रहे हो या बैठे हो आराम से, टीचर को नहीं सुन रहे हो, देन यू विल नॉट गेट. So be careful whenever I teach you in the class. Good, Sohani. So now I am reading from your book. The way I explained, देखो book में भी वैसा ही लिखा है. While declaring dividend, management must keep in mind the preferences or expectations of shareholders. If the shareholders in general decide that at least a certain amount is paid as dividend, अगर shareholders ये चाहते हैं कि हर साल dividend skip ना करो, कुछ थोड़ी बहुत amount हमें जरूर दो, the companies are likely to declare the same. Companies को बात माननी ही पड़ेगी. There are always some shareholders who depend upon regular income from their investment. वो example मेरे वाली है, that are old aged person. क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो डिविडेंड के ऊपर ही डिपेंड है, उन्होंने अपनी सारी सेविंग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दी है, सो दे वांट अ रिटर्न फ्रॉम योर साइड. इन दैट केस यू कांट मेक देम annoyed. आप उन्हें नाराज नहीं करेंगे, बिकॉज माय हैप्पी शेयर होल्डर्स मीन्स माय कंपनी विल डेफिनेटली प्रॉस्पर. क्योंकि अगर मेरे शेयर होल्डर्स मेरे से नाराज हो गए और उन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, मार्केट में मेरे कंपनी की रेपुटेशन डाउन आ जानी है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स डाउन आ जाना है, मैं ऐसी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करूंगी. सो यू कांट इग्नोर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर शेयर होल्डर्स. जी पॉइंट टैक्सेशन पॉलिसी मेरे को क्योंकि न्यूमेरिकल से समझाना है, मैं बाद में डिस्कस करती हूँ. पहले आप एच पॉइंट पे आ जाओ. स्टॉक मार्केट रिएक्शंस. स्टॉक मार्केट रिएक्शंस मींस स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है. स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, अगर आप डिविडेंड नहीं पे करते हो, आपके शेयर के प्राइसेस डाउन आने शुरू हो जाते हैं, एक नेगेटिव वेव आपकी कंपनी की मार्केट में चलनी शुरू हो जाती है. सो उस नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए यू शुड पे रेगुलर डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स. अदरवाइज वो आपका डिसीजन डिविडेंड ना पे करने का आपकी अगेंस्ट भी जा सकता है. देखो जरा उसने यही की लिखा. Investors in general view an increase in dividend as a good news and that is a positive way. क्योंकि कोई भी नया शेयर होल्डर जब मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहा है, वो हमेशा पिछला रिकॉर्ड देखेगा कि पिछले सालों में कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, एंड दैट ऑलवेज बीइंग ट्रेवल्ड एज अ गुड न्यूज इन द मार्केट. मैं बोलती हूँ पॉजिटिव वेव की तरह काम करती है. अगर आप मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपनी पोजीशन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको रेगुलर डिविडेंड पे करना होगा. सिमिलरली अगर आप डिविडेंड पिछले साल आपने 5% दिया था, करंट ईयर में आप 2.5% दे रहे हैं, और अगले साल आपने मिस ही कर दिया, उस केस में इट विल बी अ नेगेटिव न्यूज कि आप लगातार डिविडेंड को कम कर रहे हो और एक साल ऐसा आ गया जिस साल आपने डिविडेंड बिल्कुल अनाउंस नहीं किया. So the possible impact of dividend policy on equity share price is one of the important factor considered by management while taking a decision about it. ये कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके डिविडेंड डिसीजन का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में किस तरह से असर पड़ता है. तो मैनेजमेंट को बहुत सोच समझ के स्किपिंग ऑफ डिविडेंड का डिसीजन लेना होता है, कहीं हमारी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हमारे शेयर्स की प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े. असेस टू कैपिटल मार्केट. असेस टू कैपिटल मार्केट बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी. अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो क्या आप दोबारा से नई शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो, यू एज अ कंपनी. अगर आपको पैसे की और जरूरत है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रेज मोर कैपिटल इजीली फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. इफ आंसर इज यस, यू कैन पे रेगुलर डिविडेंड. अगर आपके लिए नई कैपिटल मार्केट में रेज करना मुश्किल है या मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, बहुत आसानी से आपको कैपिटल या मार्केट से लोन वगैरह नहीं मिलना, उस केस में आप डिविडेंड को स्किप करोगे क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए और पैसा चाहिए. आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस. इफ इट इज इजी फॉर यू टू रेज मोर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, देन यू कैन पे डिविडेंड रेगुलरली. लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है और मार्केट से पैसा रेज करना आपके लिए डिफिकल्ट और कम्बरसम जॉब है, उस केस में आप कम डिविडेंड पे करोगे या डिविडेंड स्किप करोगे. देखो उसने क्या लिखा. लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव, जैसे टाटा को भी पैसे की जरूरत है, जब कभी भी टाटा के शेयर्स अनाउंस होंगे ना, पीपल यूजुअली वेट फॉर इट. सिमिलरली रिलायंस के शेयर्स जब कभी भी इशू होंगे, पीपल वेट फॉर इट. एट प्रेजेंट आईपीओ चल रहा है LIC का, तो पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट. LIC इज वन ऑफ माय रिनाउंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. तो यहाँ पे रिस्क निग्लिजिबल है, गवर्नमेंट कभी भी आपके पैसे के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी. जब कभी ऐसे रिप्यूटेड कंपनीज के शेयर्स लॉन्च होते हैं, पीपल रेडीली बाय.
अगर आपकी कंपनी की भी ऐसी सिचुएशन है तो आप डिविडेंड रेगुलरली पे करते रहो, क्योंकि जब कभी भी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी हम रेस कर लेंगे मार्केट से. आई एम रिपीटिंग द लाइन व्हिच ही इज राइटिंग इन योर बुक. Large and reputed companies generally have easy access to the capital market, therefore may depend less on, इसलिए इन्हें retain रखने की जरूरत ही नहीं है. They don't require to retain the earning. They can distribute maximum dividend to their shareholders. So these companies इनके पास easy access to capital market है. These companies tend to pay higher dividend than the smaller company which have relatively low access to the market. एक नई कंपनी खुली है जिसका मार्केट में अभी कोई नाम ही नहीं बना, तो वो कंपनीज के लिए मार्केट से पैसा रेस करना डिफिकल्ट टास्क रहती है, इसलिए वो कंपनीज कम डिविडेंड पे करती हैं. लेकिन रेप्यूटेड कंपनी के लिए हमेशा मार्केट का असेस इजी रहता है, सो दे ऑलवेज पे और दे अफोर्ड टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड. आगे चलते हैं जी, लीगल कंस्ट्रेंट्स. वैसे तो डिविडेंड कितना पे किया जाए दैट इज एन इंटरनल पॉलिसी ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट. मेरे को लगता है ये बात समझ आ गई होगी. इंटरनल पॉलिसी ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट, कितने % डिविडेंड हम लोग अपनी कंपनी के प्रॉफिट का डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर इसको अनाउंस करें. कंपनी की मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. बट समटाइम्स इफ योर कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है पहले हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट करना, फिर जो बचेगा उसमें से डिविडेंड देना. दैट इज व्हाट वी कॉल लीगल कंस्ट्रेंट्स. या कई बार सेबी ने बोला होता है कुछ कंपनीज के लिए कि आपने इतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना ही है. So you will be following the rules and regulations, you will be following the laws and provisions, and accordingly you will be taking the final decision about the dividend to be paid to the shareholders. जैसे उसने लिखा, कई बार कहता कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस होते हैं which place restrictions on payouts as dividend. Such provisions must be adhered to while declaring the dividend. या सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले. जो मैंने बैंक का पॉइंट दिया है ना, उसको उसने के में डिस्कस किया. के पॉइंट में कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. आपका बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने वहां पे लिख के दिया है कि प्रॉफिट जब मेरा आ जाएगा, हर साल के प्रॉफिट में से पहले मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, अगर कुछ बचेगा तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करूंगा. While granting loan to a company, sometimes lender here means banker may impose certain restrictions on the payment of dividend in future. The companies are required to ensure that dividend does not violate the terms of the loan agreement in this regard. बैंक ने करोड़ों का, 5 करोड़ का आपको लोन दिया है. हाउ कैन बैंक टेल यू कि आप पहले डिविडेंड पे करो बाद में इंटरेस्ट? तो बैंक के साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो भी आपने बॉन्ड साइन किया है, आपने उसके रूल्स और रेगुलेशन, टर्म्स और कंडीशंस को भी फॉलो करना है. देन यू विल बी टेकिंग द फाइनल डिसीजन रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. So this was the end of the point, but one point I left in between, which is taxation policy. बच्चे ये पॉइंट समझने से पहले 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए इंडिया में. एक तो टीडीएस का सिस्टम है. टीडीएस को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सो जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. उस डिविडेंड के ऊपर हमारी, दिस इज टैक्सेशन पॉलिसी, उस डिविडेंड के ऊपर हमारे कंपनी को शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर टैक्स देना होता है. So dividend is always taxable in the hands of company. Before paying dividend to the shareholders, company उसके ऊपर TDS काटेगी और गवर्नमेंट को जमा करवाएगी. Similarly हमारे स्कूल मतलब एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी इंडियन इनकम टैक्स का ये रूल है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देने से पहले उसके ऊपर टैक्स काट के हमें डिपॉजिट करवाना है. So we get our net salary after the deduction of tax. This is what we call TDS. अब क्योंकि डिविडेंड के ऊपर कंपनी ने टैक्स देना है, ठीक है, तो अगर मार्केट में टैक्स रेट बढ़ रहा है तो आप ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिविडेंड दोगे उतना आपको गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इफ अर्लियर द टैक्स रेट ऑन डिविडेंड वाज 20% एंड लास्ट ईयर यू पेड 60 लाख इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इस साल भी आप 60 लाख ही रखना चाहते थे, लेकिन और आपने 12 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बाकी 40 लाख आपने शेयर होल्डर्स को, 48 लाख शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दिया आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्स. इस साल टैक्स रेट बढ़ गया, आप आज भी 60 लाख को मेंटेन करोगे और आपको 18 लाख क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. अगर मार्केट में टैक्स रेट बढ़ रहा है तो आप डिविडेंड की कम पेमेंट करो.
क्योंकि उस केस में आपकी टैक्स की क्या हो जाएगी, सेविंग। और ये पॉइंट समझने के लिए आपको ये बात याद रखनी है, दो डिविडेंड इज एन इनकम फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर कंपनी की ड्यूटी है कि पहले टैक्स काट के गवर्नमेंट को क्या करवाना है, जमा करवाना है। दिस इज वी कॉल टीडीएस। जरा देखो इसने क्या लिखा, the choice between the payment of dividend and retaining the earning is to some extent affected by the difference in tax treatment of dividend and capital gains. If tax on dividend is higher, it is better to pay less. मैंने भी बोला अगर मार्केट में टैक्स रेट क्या है, ज्यादा है, तो आप डिविडेंड की फॉर्म में कम पे करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिविडेंड बढ़ाते जाओगे उतना आपको टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा जमा करवाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को पे करने की बजाय अपने पास रखो ना। इन दैट केस यू विल बी इंक्रीजिंग योर रिटेन्ड अर्निंग एंड यू विल बी पेइंग लेस डिविडेंड। ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन दिस एक्सप्लेनेशन, राइट? सो माय चैप्टर इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने बिगिनिंग में मीनिंग किया, which was it is a process or it is a concept which lays emphasis on the optimal procurement of finance and its effective or optimum utilization. मीन्स आपने पैसा वहां से प्रोक्योर करना है जहां से आपको सस्ते में मिले, और फिर आपने उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करना है। दैट इज आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स करे। देन ही टुक अनदर टॉपिक इन द बुक ओनली, दैट इज financial decisions. Under financial decisions, we categorize them into three parts. One was investment decision, उसका meaning, उसके factors. फिर हम लोगों ने किया financing decision, उसका meaning, उसके factors. And the last decision today we have compiled up, which we call dividend decision, उसका meaning और उसके factors, right? Now, he is moving towards another topic of the chapter, which we call financial planning. जैसे हम लोगों ने अपनी फर्स्ट बुक में पहले चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था, फिर फोर्थ चैप्टर प्लानिंग का था, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक टर्म इस चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दूसरी टर्म इस चैप्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग है, देन आवर आंसर शुड ऑलवेज बी देयर दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। और अगर मैं फर्स्ट बुक के हिसाब से प्लानिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट फ्यूचर। अब यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा, आपको कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, उसके बारे में आपने पहले से ही सोच के रखना है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मकसद क्या होगा, देयर शुड नीदर बी शॉर्टेज ऑफ फंड्स नोर देयर शुड बी सरप्लस ऑफ फंड्स। अगर पैसे की कमी होगी कंपनी में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी जो आपके हाथ से निकल जाएंगी क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। और अगर आपके पास सरप्लस ऑफ फंड्स होगा तो अननेसेसरली वो पैसा पड़ा रहेगा, आप उसे यूज तो कर नहीं रहे हो लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह तो पे करना पड़ेगा। तो कभी भी जरूरत से ज्यादा आपने पैसा मार्केट से रेज नहीं करना, और कभी भी आपके पास पैसे की शॉर्टेज ना हो। इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए वी शुड नो व्हाट एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग इज। मैं एक छोटे से ट्रिप पे भी जाती हूँ तो भी मैं प्लान करती हूँ। I write on my diary what things I should carry with me, on which date I have to leave my home and on which date I have to reach at that particular destination. और फिर मेरे को वहां से चेकआउट कब करना है और कब मेरे को वापसी करनी है। बिफोर हैंड आई मेक द रिजर्वेशंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। वहां पे अकोमोडेशन कहाँ पे होगी, मैं घर से ये सारा कुछ सोच के निकलती हूँ। मींस मैं सब कुछ प्लान करके निकलती हूँ। एक छोटे से ट्रिप में ऐसा हो रहा है तो वी आर रनिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी भाई, जो मिलियंस और बिलियंस में डील कर रही है। So how can we skip planning? और वहां पे भी प्लानिंग किस चीज की, फाइनेंस की प्लानिंग हम कैसे स्किप कर सकते हैं। घरों में बच्चों की शादियों के लिए, बच्चों के इंश्योरेंस के लिए, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड की लाइफ के इंश्योरेंस करवाते हैं। मींस वहां पे भी हम अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। इतनी हमारी मंथली सैलरी है, इतनी हमारी ईयरली इनकम है, उस इनकम को मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट थिंग्स में, so that हम फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके रखें। So we are again running a company which is a game of millions and billions. That's why we need to be particular regarding the raising of the funds and its utilization. Again, I am repeating one sentence. In this chapter, financial management is a wide term and financial planning is a part of it. और financial planning में हम क्या करने वाले हैं? Let's discuss that. Financial planning, a new topic we are picking today. From tomorrow onward for 2 days, I think ma'am's period will be there.
ठीक है, 4th to 6th डे है ना, और 5th डे मेरे पास आपका बिजनेस स्टडीज का रिपीट पीरियड है. सो वेयर एवर मैम विल लीव आई विल बी पिकिंग फ्रॉम देयर. And about today's lecture, I will tell her. इसके बाद वाला topic ma'am will start. This is financial planning. We have to plan about our finance so that there should neither be shortage or surplus of finance at any point of time. देखो जी क्या लिखा. Each and every line from this paragraph I will read and I will be telling you the highlights here. Financial planning is essentially, yes. एक वर्ड हमेशा आपको याद रखना है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स. फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स का मतलब है आपने थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के रखना है कि मेरे को पैसा कब चाहिए और कितना कितना चाहिए. सो दिस टर्म ही कॉल्स फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स. दिस लाइन ही पिक्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, नेम द कॉन्सेप्ट. So once you read this paragraph and the very first line in this paragraph, he's talking about blueprints, you will be easily identifying, yes, he's talking about financial planning. It is a process of preparation of financial blueprint of an organization's future operations. मतलब फ्यूचर के ऑपरेशंस के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा, जब आप उसका एस्टिमेट बना के रखते हो, एक डायरी में लिख के रखते हो, उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं. जैसे किसी बंदे की मंथली इनकम 1 लाख है, उस 1 लाख में 10,000 की मेरी इंश्योरेंस चाहेगी बच्चों की, 5,000 की इंश्योरेंस चाहेगी मेरी वाइफ की, उसमें से 20,000 का मेरे घर की क्या आएगा, राशन का सामान आएगा, 10,000 मेरे बच्चों की स्कूल की फी होगी, इतना मेरा पेट्रोल और डीजल का खर्चा होगा. सो एवरीथिंग यू जस्ट प्लान. ठीक है, जब आप ऐसी एस्टिमेट बना के रखते हो कंपनी के फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, बिकॉज प्लानिंग इज ऑलवेज मेंट फॉर फ्यूचर ना, तो इसलिए वर्ड फ्यूचर भी याद रखना और साथ में फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी याद रखना. जब कभी भी वो टैगलाइन में फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की और फ्यूचर ऑपरेशंस की बात करेगा, योर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन विल डायरेक्टली बी फाइनेंशियल प्लानिंग. सो द ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला एनफ पैसा हो. एनफ का मतलब क्या है? देयर शुड नीदर बी शॉर्टेज नोर देयर शुड बी सरप्लस ऑफ फंड्स. तो क्या लिखा उसने? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम. राइट टाइम का मतलब क्या है? जब मेरे को पैसे की जरूरत हो उस टाइम पे मेरे पास एनफ मनी हो, एडिक्वेट मनी हो. मींस कभी मेरे को वेट ना करना पड़े. हैड आई बीन द मनी इन माय हैंड तो आई विल बी अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जांपल आपकी कोई मशीन बॉयलर है, वो कोल से चलता है और आपको कहीं से कोई हिडन इंफॉर्मेशन मिली कि आने वाले 1 वीक में कोल के प्राइस डबल होने वाले हैं. आपको लगा कि मेरे को कोल ना ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के रख लेना चाहिए, तो रेगुलरली यूज होता है, तो मेरी थोड़ी सी कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी, राइट. लेकिन उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं थे, आप कोल खरीद ही नहीं पाए, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं कर पाए बिकॉज यू आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ मनी. लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉलिड होती तो आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी होती और आपका फाइनेंशियल मैनेजर आपको पैसे अवेल करवा के देता और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते. तो कुछ हद तक आपके उन दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए आपको सस्ते में कोल मिल गया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहता. ठीक है. सो दिस थिंग, while making the plan for the future, we have to keep in our mind that there should be enough funds at the right time. Right time पे हमें पैसे जितने चाहिए उतने हों. If adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitment. अगर आपके पास जो पैसे चाहिए वो नहीं अवेलेबल हैं, तो आप बहुत सारी अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो और आपके प्लान्स भी सिर्फ पेपर पे रह जाते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो. लेकिन अगर आपके पास एक्सेस फंड्स हैं, इट विल अननेसेसरली ऐड टू योर कॉस्ट, क्योंकि आपको उसके ऊपर करोड़ों पैसा पड़ा है कैश बॉक्स में या बैंक में रखा है, बैंक से लोन लेके, लेकिन उस पैसे की जरूरत ही नहीं थी. बिना सोचे समझे आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया और हर महीने उसके ऊपर 5 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर 5% पे भी है तो. सो अननेसेसरली आप कॉस्ट को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो. सो इट एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. जब हाथों में पैसा होता है तो जरूरत ना भी हो तो आप कोई चीज खरीद लेते हो, जिसके कारण आपके बेकार में खर्चे क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं. It must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or substitute for financial management. कहते हैं यहाँ पे ये बात माइंड में रखना कि फाइनेंशियल प्लानिंग ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट करता है और ना ही उसके बराबर. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में, मैंने बिगिनिंग में बोल दिया, इज अ वाइडर टर्म एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. बोथ आर नॉट सेम, राइट. अब उसने लिख ही दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट choosing the best investment
and financing alternative by focusing on their cost and benefit. Financial management में हम वो source of finance ढूंढते थे जिसका cost कम हो और benefit ज्यादा हो. फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये कोशिश करते हैं कि पैसा जब हमें चाहिए राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो. जरूरत से ज्यादा सरप्लस में मनी आपने इकट्ठी नहीं करनी. तो दोनों सेम कैसे हुए? वहां पे वो फंड लेना है जो सस्ता है और जिसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, और यहाँ पे ये फोकस कर रहा है पैसे की कभी शॉर्टेज ना हो, पैसे की कभी सरप्लस ना हो. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज द ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, एंड टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ. और इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम. देयर शुड नीदर बी सरप्लस ऑफ मनी और नोर देयर शुड बी एक्सेस शॉर्टेज ऑफ मनी. ना कभी शॉर्टेज ऑफ मनी हो और ना ही वो पैसा कभी सरप्लस में हो. So financial planning on the other hand aims at smooth operations by focusing on fund requirement. जितनी हमें पैसे की जरूरत है वो अवेलेबल होना चाहिए. बड़ी अच्छी एग्जाम्पल से उसने हमें दोनों के मीनिंग को डिफरेंशिएट किया है. If a capital busting decision is taking, what is the meaning of capital busting decision? When you invest in your long-term investment. For example, you are buying a machinery. That is a capital busting decision. You are opening a new branch of your company in North Zone. पहले आपका साउथ और ईस्ट में बिजनेस चल रहा था, अब नॉर्थ जोन में भी आपने अपनी कंपनी की ब्रांच खोलनी है. तो these are the examples of capital busting decision. The operations are likely to be at a higher scale. अगर आपने कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना है, इट मींस कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा हाई स्केल पे चल रहा है. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर लाइकली टू इंक्रीज. तो जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं आपका इनकम भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे. फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस. फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजों का खर्चा हमारा बढ़ने वाला है, हमें कितने पैसे की जरूरत होगी और कब होगी. Because you are going to spend a lot of money on capital expenditure. Capital expenditure means like machinery आप नहीं लगा रहे हैं या फिर आप कोई नई ब्रांच खोल रहे हैं अपनी कंपनी की. तो इसके कारण फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण क्या होगा? The management is able to foresee the funds requirement, both the quantum as well as timing. क्वांटम मीन्स हमें कितना पैसा चाहिए होगा और कब चाहिए होगा. Had you not been involving yourself in financial planning, how can you come to know कि हमें कितना पैसा चाहिए? तो आप ब्लाइंडली मार्केट में से पैसा रेज करोगे और हो सकता है वो पैसा या तो कम निकले या ज्यादा निकले. तो दोनों एक्सट्रीम केसेस हमने अवॉइड करने हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण ना ही आपके पास कभी ज्यादा पैसा होगा और ना ही आपके पास कभी कम पैसा होगा. इन दोनों पॉइंट्स को उसने ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में लिख दिया. फर्स्ट, to ensure the availability of funds whenever required. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कंसर्न में हो रही है तो आपको कभी भी पैसे की शॉर्टेज नहीं फेस करनी पड़ेगी. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है तो आपके पास कभी भी सरप्लस में मनी नहीं होगी. राइट? सो these two objectives ma'am will continue tomorrow. I will tell ma'am about it. Its importance is there, and like that way she will be continuing.